सो 2002 में તમારે બીટીની શરૂઆત થઈ, એને બાદ નવા નવા જાતના કીટ આવી ગયા, રોગ આવી ગયા, એમાં ખેડૂતોનો ખર્ચો વધ્યો છે. એને કારણ થકી શું થાય, કપાસનો વાવેતર ધીરે ધીરે ઘટતો જાય કે એને ખેતી મોંઘવારી થઈ ગઈ સાહેબ, કઈ વસ્તુ નથી. આ વર્ષે બી અમે ખેડૂતોના હાથે વડે વાત કરતા હતા, ગયે વર્ષથી આ વર્ષનો અડધો મુનાફો છે, અડધો ઉત્પાદનને કમી છે. તો આ જે ટોટલ વાતાવરણ में टोटल बदलाव थયું है, એને બદલે बीसीआई નો આ પ્રોજેક્ટ હાલે कि 21 देशों में आ बीसीआई काम करे है. तो वहाँ ना अफ्रीका देश है, पाकिस्तान છે, चीन છે, આના वहाँ કેવી સ્થિતિમાં ખેડૂત કામ કરે એનો અનુભવ તમારા હાથે શેર થાય. ठीक है, तो हमें અહીં गांव में जसदण है, गोंडल है, અહીં तालुका में कम से कम 30 થી 35 गांव हमें લીધા है. તમારા અહીં जसदण में भी हमारे 7 થી 8 गांव और લીધા है. એને હાથ લગે हमारे एफ्रो संस्था જે है, क्योंकि एफ्रो संस्थाનો ગયે અહીં લગભગ 10-12 વર્ષથી કામ છે. ये बीसीआई ના હાથે પુરાણી ટાઈમથી કામ કરી રહે, પર અમે 2015 થી बीसीआई ના હાથે જોડાયા. તો बीसीआई નો કામ અમે જે પ્રોજેક્ટ લીધું है વર્ધમાન વારે एफ्रो સંસ્થાને અમે હેન્ડઓવર કર્યું है, क्योंकि એનો જૂનો અનુભવ છે, બહુ બઢિયા રીતે એને ખેડૂતોને ફાયદો અલાવ્યો है. અમારી ટોટલ જે ગતિવિધિ છે ખેડૂતને માહિતી આપવાની એક્સટેન્શન ગતિવિધિ છે, તાકી ખેડૂતનો જો ઓછો ખર્ચો સારું ઉત્પાદન થાય. એમાં આવડે જે વિકાસને તમે મુદ્દાની વાત કહો તો પાક સંરક્ષણની વાત થાય. ઠીક હે, એને પાયાની વાત કરે, પ્રોજેક્ટની પાયા હોય, કોઈ બી પ્રોજેક્ટ હોય એને પાયા હોય તો એને પાક સંરક્ષણ પહેલો મુદ્દો અમારો છે. ખેડૂતને કે પાક સંરક્ષણની એવી ગતિવિધિ, એવી એક્ટિવિટી ખેડૂત અપનાવે જેન તકી એને રોગ ને જીવાત તકી નિયંત્રણ થાય, કંટ્રોલ થાય ને એનો ખર્ચો ઘટે, ઉત્પાદન में જે આડઅસર થઈ રહી है એ ઓછું થાય. એને હાથ લગી બીજો સંસાધન છે જે પ્રકૃતિ આપ્યું है, જલ. જલની વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે ખેડૂતો કરે, क्योंकि દિવસે દિવસે આ જમીનને જળ ટોકું થઈ રહ્યું है. હું રાજસ્થાનની છું એટલે તમને ખબર હોય, વहाँ પાણીની અમારે પીવાની પાણીની લાઈન લાગે છે, એવી સ્થિતિ છે. तो आ स्थिति बीजा राज्यों में भी થવા વાળી वाला टाइम में, क्योंकि पानी गरे तो टोटल जमीन में नहीं उतरतु, वही न नदी नाला ने माध्यम तक समुद्र में जातु रहे. तो आवा वाला 10 वर्ष तमे को हो साहब हमारे तो पानी खूब है, पर आवा वाला टाइम हर राज्य ने, हर प्रदेश की परिस्थिति धीरे धीरे खराब થવા रही है. तो खेती में एवी स्थिति न थाय, एने बदले भी થોડોક વ્યવસ્થાપન કરવાની જરૂરત છે, એવી તકનીક અપનાવવાની જરૂરત છે. એને હાથે અમે યુનિવર્સિટી, જે જુનાગઢ યુનિવર્સિટી, એને બી હાથે લીધું है. ફેર ત્રીજી વાત થાય જમીનની. પાણી કેટલો બી વરસાદનો ગરે એને તમે રોકીને બાંધીને જમીનમાં ઉતારી શકો. માટી એવી ચીજ છે જે બનતી નથી, હે ને? માનો નથી માનતાની વાતને. આ માટી જે હે 500 વર્ષથી એક ઇંચ જે માટી હોય, જે પાકને ઉગાય है, જે પાકને મોટી કરે है, 1 इंचनी माटी धीरे 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 શું થઈ રહી, સારી થઈ રહી, ખરાબ થઈ રહી, બનતી નથી. કોઈ બી માટીની એવી ફેક્ટરી નથી કે પાણી માટી બની શકે. એનો કેવી રીતે વ્યવસ્થાપન કરે, એ બી પ્રોજેક્ટમાં અમારે એક મેન હેતુ છે. એને હાથ લગે ફાઈબર ને ક્વોલિટી, તમે બધી ચીજ નો ધ્યાન રાખ્યું ને ફાઈબર ને કપાસની ગુણવત્તા કેવી રીતે જળવાઈ રહે, તાકી ખેડૂતને 2 પૈસા સારું મળે. ठीक है, तो हमारे એને બદલે हमारे जसदण में गिरिराज तमे कोटेक्स જોયું होगा, महावीर भाई ની છે, અમે ખરીદીનો કામ भी करे हैं. क्योंकि तमेने मैं તમને કીધું कि ખરીદીનો કામ અમારી કપાસની, हमारी डोरा बनावनी कंपनी છે, तो અહીંથી ખરીદી થાય ને हमारे लुधियाना में मोटी फैक्ट्री છે, तो वहाँ એની ગાંસડી બનીને वहाँ जाए है. तो खरीदी भी बदले हमारे शैलेश भाई છે, ये खरीदीનો કામ हमारे वहाँ गिरिराज कोटेक्स में करे है. तो हारू ખેડૂતને માહિતી આપીને બધી ચીજનો ધ્યાન રાખીને જે કપાસ તમે ઉગાવો તો એનો ભાવ, તમે કપાસ સારું હોય તો ભાવ બી સારો મળે. એને બદલે આ બી તમારી એની વ્યવસ્થા અમે કરી રાખી. તો गिरिराज कोटेक्स જે મહાવીરભાઈની છે, वहाँ हमारी खरीदीનો કામ भी થાય. છેલ્લે હવે દિવાળી બાદ લાભ પંચમીથી એને ખરીદી भी ચાલू થઈ जाएगा. फाइबर क्वालिटी ની बाद में हमें बात करें हैं सामाजिक उत्कृष्ट कार्य नहीं, क्योंकि कपास हाथे केवल ने केवल ખેડૂત નથી જોડાયેલું. ઠીક હે, ખેતી તમે ઓછી કરી દો કપાસની તો ખેડૂત માટે તો
વધુ અસર નથી પડતો, કારણ કે તમે કપાસની જગ્યાએ સોયાબીન લઈ લોગા, શિયાળુ મેં ઘઉં લઈ લોગા, પણ એને હાથે જો જોડાયેલા સંકળાયેલા વર્ગ છે, જેનमें તમારે એક મજૂર તમે જોતા હોય, તમારે અહીં ઓછા આવતા હોગા મજૂર, पर गोंडल बाजू में, अमरेली में, बीजा डिस्ट्रिक्ट में कपासनी पाक में केटला मजूर एमपी ना, दाहोदना, गोधराना, राजस्थान केटला संकળાયેલા मजूर होय जेने रोजगारी मळे है। कपासनी खेती ओછી થઈ જાય तो एने रोजगार माटे कहीं ना कहीं फरक पड़े है। एने बदले भी आ प्रोजेक्ट में बात है कि आ कपास थी जोड़ाયેલા जे मजूर है, ये काम करे है, इनमें एना हित, एना हेतु, एने स्वास्थ्य, एने रोजगार केवी रीते जळवाई रहे, एनो बे पैसा बढ़िया मळे, बे पैसा हारा मळे, खेडूतनो भी फायदो थाय ने एने टाइम उधी मजूर मळी जाए, एना हित कहीं ना कहीं एन तकी जोड़ेला छे। एटले सामाजिक उत्कृष्ट कार्य में जे वंचित वर्ग होय गाम में, एने माटे अमे काम करें, मजूर हाथे काम करे। एटला भाई तमे बैठा हो, कम से कम 50 भाईओ हो, भाई ना हाथे एक परिवार में एक बेन भी होय नथी, जेन तकी ये परिवार हाले, एकला भाई तकी हाली जाए। भाई ने हाथे भगवाने बे जोड़ा मोकल्या है, पर एक ज वर्ग अहीं मजबूत थई रह्यो, तो इनमें जेंडर नी बात छे, ठीक है। तो एने भी समझावानी जरूरत है कि आवड़े हमारा वहां राजस्थान में पहले भी स्थिति थी, पर आ हमें लगातार मीटिंग गामा में करिए, स्वयं सहायता समूह संगठन बनाव्या, सखी मंडल बनाव्या, तो आऊ बाइया मीटिंग में आवा लगी है। हमारे वेच में एक्सटेंशन ऑफिसर एग्रीकल्चर भी आया है, तो बधा डिपार्टमेंट जो होए एकला ने एकला भाई तक समझावा तक काम नहीं हालतुं, इनमें भाई ना बेन बेनी समझ एक हरकी होवी जुए। कोई भी प्रोजेक्ट होए, कोई भी सरकार नी नीति होए, नियम होए, एने अपनावू है तो बेनी समझ एक हरकी होवी जुए। एने बदले भी आ प्रोजेक्ट में काम छे कि बे हाथे एक हरको व्यवहार थाय। खेती में भाई भी आवे ना बेन भी आवे, तो बेन ने भी समझ होवी जुए एने केटला अधिकार छे, एने केटला काम छे, ठीक है, एने भी काम नो अधिकार छे। तो बधी चीज माटे इनमें हमारो काम थाय है। एने हाथ लगे एक मोटो मुद्दो इनमें आ वर्ष तक हमारा जोड़ायो, जो बहुत पहले तक ही जोड़ावू जुए, जिनमें मोटी बात है आबोहवा परिवर्तन। तमे बधा माणसो छो, हमें माणसो छो, तमे जोता होगा आ टाइम में गए 10 वर्षनी 5 वर्षनी तमे बात करो तो जर्सी पहनी ना आ टाइम में आवू पड़े, और आ गए 5 वर्षथी तमे जोई रह्या हो कि गर्मीनो प्रमाण केटलो वधी गयो, तापमान वधी गयो। आ शुं है? जलवायु परिवर्तन। मौसम भर में 3 था है, सर्दी, गर्मी ना वरसाद, 4-4 महीना तीनों रहे, तो सर्दी ना दिवस ओछा थई गया, गर्मी ना दिवस वधी गया, बरसात ना दिवस वधी गया। बरसात एक हरकी नथी थाती। आज थी 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले कोई जूना मानस बैठा होगा तो एने वे दिवस भी जोया होगा कि लगातार 2 महीना 3 महीने पानी पड़्યું होगा। आऊ थाय एवो नथी थातुं, 20 वर्ष तक ही नथी थातुं। तो जलवायु में भी टोटल परिवर्तन धीरे धीरे थई रह्यो। एनी आड़असर कहाँ जोवा मळे? मनुष्य माटे, पशु पक्षी माटे, वनस्पति माटे। आ वर्षे तमे जोई रह्या हो एने आड़असर। कपासनी फसल अर्धी उत्पादन थई गयुं, नवा नवा जीवात ने रोग आवी जाए। तो जलवायु परिवर्तन, आबोहवा परिवर्तन केम थाय एने माटे तमे विचार करता होय? बेहे तो विचार तो करवू जोईए ना कि केम थई रह्यो, 10 वर्ष 20 वर्ष तक एवे 25 वर्ष तक केम थई रह्यो एवो। भगवाने तो एवी सृष्टि जे रचना करी है, एने तो बढ़िया सृष्टि करीने भगवाने मनुष्य ने आपी है, जिनमें बधा जीव हता, पशु पक्षी मनुष्य वनस्पति बधी चीज ने आपीने भगवान ने जीव उतार्યું હતું। पर आ वगाड्યું केने? केने वगाड्યું? मनुष्य वगाड्યું। जेन तक आ आड़असर जोवा मળી रही है कि टोटल तापमान में परिवर्तन થઈ ગયું है। तापमान, पृथ्वीनो तापमान वधी गયું है। एने अगर भौगोलिक भाषा में कहे तो ग्लोबल वॉर्मिंग થઈ रही है, वैश्विक तापमान वधी રહ્યું है। कारण શું है એનું? એને કારણ भी જોવાની જરૂરત છે। તમે જાણતા હોય તો ચંદ્रमा હોય તો ચંદ્रमा માથે સૂરજની કિરણે પડે है, ठीक है, तो જેટલે સુધી સૂરજની કિરણે પડે તો વहाँ ટેમ્પરેચર 15 થી 20 डिग्री रहे है। पर જેની એની સતહ બદલી જાય તો તાપમાન વहाँ एकदम -15 डिग्री हाली जाए, तो वहाँ जीवनो प्राणीनो निवास
નથી, પણ પૃથ્વી માથે છે. કેમ? क्योंकि सूरज ની જે કિરણે ગરે હે, દિવસ में गिरे है ने रात्रि में तो નથી करती, फिर भी અહીંનો તાપમાન 15-20 ડિગ્રી રહે है. એનો કારણ આ વાયુમંડલ છે. પૃથ્વી માથે ચારો તરફ એક વાયુમંડલ છે ને વાયુમંડલ में 5 થી 6 જાતની મેન ગેસે છે. इनमें કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તમે સાંભળ્યું હોગા, એક ગેસનું નામ છે ये છે. એને કારણ થકી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ है, मीथेन है, एने बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड. आ 5 થી 6 गैस वायुमंडल છે. इनमें 60% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड છે. आ शू करे गैसे? पृथ्वी माथे सूरजनी दिवसे किरणे गिरी, जेम जेम रात्रि पड़े है आ पृथ्वी ये किरणे विकिरणे दीर्घ तरंगी विकिरणे छोड़े. आ गैसे शू करे? इन्हें अवशोषित कर ले. ठीक है, वायुमंडल में सीधी अंतरिक्ष में जावा नहीं देती, इन्हें अवशोषित कर ले. इन्हें अवशोषण थकी आ गर्मी रात्रि में भी पृथ्वी माथे रहे, जेन तकी आ टोटल प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति जीवी रह्या है. चंद्रमा बीजा ग्रह माटे एवं नतुं थતું, पर दिवसे दिवसे शुं थई रह्युं? मनुष्यनी प्रकृति थकी, मनुष्यना कार्यो थकी आ वायुमंडल में आ 5 થી 6 जात में जे कैदी एनो प्रमाण वधी गयुं है, एनी संख्या वधी गई है. 1980 ने पहले औद्योगिक क्रांति नहीं थई थी. ठीक है, उद्योग एटला बधा नहीं हता, फैक्टरी नहीं हती. आने टाइम माटे वायुमंडल में 280 ppm, ठीक है, 10 लाख वायुमंडल में कण होय तो 280 कण केना कार्बन डाइऑक्साइड ने हेता. आવું આજની સ્થિતિમાં એના કેટલા 420 કણ થઈ ગયા. તો એટલી બધી ગેસ થઈ ગઈ है, तो જેટલી કિરણે ગિરે है ये अंतरिक्ष में जावा नहीं देती ना. धीरे धीरे पृथ्वी ने शू करी रही है? गरम करी रही है. एन तक आ टोटल वातावरण परिवर्तन थई रह्युं. तो आ जेटली बटली फैक्टरी है एन तक कार्बन डाइऑक्साइड नो उत्सर्जन थाय. मनुष्य है हवेर में उठे है, ठीक है ना, वहां थी शू बाळे है? लाइट. लाइट केन तक बने है? लाइट कहां से बनती है? कोयला तक. ठीक है, कोयले को अपन जलाते हैं, उससे जलवाष्प बनती है, टरबाइन चुंबक होती है, बड़ी बड़े चुंबक होते हैं, उसमें से लाइट बनती है. जब से जलाते हैं, जब से सोते हैं, उसके बाद खाना पकाते हैं, फिर ईंधन का परिवहन करते हैं, ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है. तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड छे आ वायुमंडल में, जेन तक या जलवायु परिवर्तन ने प्रति जवाबदारी छे. इनमें 30% भाग अहीं बात करवानो कारण शुं छे? कृषिनो 30% भाग छे, जेन तक आ वायुमंडल में आ गैस है, ग्रीन हाउस गैस के है. तमे सांभळ्युं होगा ग्रीन हाउस? सांभळ्युं नथी सांभळ्युं? ग्रीन हाउस शुं काम करे है? ग्रीन हाउस शुं काम करे है? ग्रीन हाउस शुं काम करे? तापमान ने मेंटेन करे है. तमे जोयुं होगा लीलू लीलू कपड़े रहे तो इनमें जेटली जातनी तमे सब्जी भाजी है, खेती कर लो, बधी चीज तापमान मेंटेन करे. एटलो बधो तापमान नथी आववा देतो ने एकदम ठंडी में भी तापमान गरवा नथी. आ ग्रीन हाउस नो काम है ने. एमने एम आ वायुमंडल में जे छे ने आ एक मेटल एक चादर तरीके ने बनावी दीधी એટલે એને ग्रीन हाउस गैस के है. आ जेटली 5 થી 6 जातनी में गैसे कीधी इन्हें ग्रीन हाउस गैस के है. एनो प्रमाण इनमें वधी गयुं है. तो एने वधवा में 30% भाग एग्रीकल्चर कृषि नो छे. कारण कि अमे सवेर उठता थकी एवा काम करे मनुष्य जेन तकी ग्रीन हाउस गैस वधी रही है. खेती में तमे खेड़ करो, वारंवार खेड़ करवा तकी जमीन में थी कार्बन डाइऑक्साइड नो उत्सर्जन थाय. खेती खावा बाद जमीन में जेटला बधा तमारे वेस्टेज होय, साठिया होय, कपासना साठिया हूँ करो तमे हळगावी दो. वहां तकी गैसनु उत्सर्जन था. जानवर मरी जाए एने बाद एना ढगला जमीन माथे छोड़ दो. वहां तकी गाय पशु मवेशी जे है गोबर करे है, वहां तकी गैसनु उत्सर्जन थाय. मतलब जेटला जातना तमे खेती में काम करो एन तकी कार्बन डाइऑक्साइड नो उत्सर्जन धीरे धीरे वधी रह्युं. तो एने हमारवानी जरूरत छे. नहीं तो आवावाळा टाइम में शुं थायगा? एनी आड़असर जोवा मळी रही आज सुधी. अभी गया थोड़ा टाइम पहले एक बिम्पर जोय करीने तूफान आव्युं हतुं. एने पहले एक तूफान आव्युं हतुं.
आज उत्तरी भारत में एक भूकंप આવ્યો, તમે સાંભળ્યું होगा न्यूज में, भूकंप આવ્યો उत्तरी भारत में, तक कम से कम 6 तक 7 राज्यों में तूफान આવ્યું, भूकंप આવ્યો। तो આ આડઅસરથી પ્રકૃતિ એને પરિણામ જોવા શરૂઆત કરી દીધી है, જેન તકી મનુષ્યને સૌથી વધુ નુકસાન થાયगा। कारण कि जमीन तो होगा, संसाधन तो होगा, पर खेती करवा नहीं મળेगा। कारण कि नवा नवा रोग जीवात इनमें बढ़ी जाएगा, उत्पादन घटी जाएगा, जमीन खेती करवा हरकी रहेगा नहीं, पानी पेस्टिसाइड नाकी नाकी ना टोटल खराब थी जाएगा, एनो स्तर घटी जाएगा। तो बधी चीज ने तमारे हांचवानी जरूरत छे, बचाववानी जरूरत छे। जैव विविधतानी वात छे, जैव विविधता शुं छे? बधा प्राणी एक बीजा माथे निर्भर छे, ठीक है, एक बीजानो भोजन छे। आज गाँव में तमे जोवा जाओ तो बाज नहीं मळता, कौवा जोवा नहीं मळता, सांप जोवा नहीं मळता, मोर जोवा नहीं मळता। घणी चीजें प्रजाति धीरे धीरे लुप्त थई गई है, घणी वनस्पति लुप्त थई गई है जो एक बीजाना आहार था। वैज्ञानिक जो भौगोलिक शास्त्री है एम 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 निर्णय काढ्यो, एम अनुमान लगाव्यो कि आ पृथ्वीनो तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वध्યું है। अगर 1.5 डिग्री ने 2 डिग्री तक पहुंची जाएगा ना तो एने माटे खेती तमे नहीं करी सकोगा, क्योंकि जमीन नो पानी टोटल सुखाई जाएगा, वनस्पति टोटल जोवा नहीं मळेगा, पशु पक्षी जे छे एनो टोटल विस्तरण बीजी जगह थई जाएगा। तापमान વધવા થકી શું થાયगा? जहां जहां जंगल है वहां आग लगेगा। ग्लेशियर, जहां ग्लेशियर समुद्र में शू थाय, घना ठंडा प्रदेश है वहां बर्फनी मोटी मोटी सीले छे, वे पिघलेगा, वे पिघली ने कहाँ जाएगा? समुद्र में। समुद्र में जाएगा तो अपने जो तटीय प्रदेश है, कलकत्ता है, बंबई है, जो अपनी आर्थिक राजधानी है, वहां पे आड़असर आएगी, वहां का पानी पृथ्वी में घुसने लगेगा, ठीक है। जहां जहां पे भी समुद्र जुड़े हुए जिन देशों से, वहां का पानी अंदर घुसने लगेगा और धीरे 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 प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाने लगी। अभी अपने ने देखा इसका विकराल रूप बारिश के समय में उत्तराखंड में और पूरे पूर्वी भारत में कितना पानी गिरा, पूरी प्रकृति ने सब नष्ट कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, नाले, नदी सब तूफान पे थे। तो इसका रौद्र रूप कहीं ना कहीं किसको? मनुष्य को ही देखना पड़ेगा। तो हमारी सबकी महती जिम्मेदारी है, सरकार है, हम हमारी संस्थाएं हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज को समझें कि जो कार्बन का उत्सर्जन हम कर सकते हैं उसका उपाय भी करें। आज टोटल जंगल हमने काट दिया। अभी मैं इन भाई से ही बात कर रहा था कि मुड्डे किसके बना दिया आपने? टायरों के, ठीक है, बेस्ट से वेस्ट बनाया, वो बढ़िया बात है, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो अपने पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, वो लेते थे। वो सारी अपने पुराने लोग जो यहाँ बैठे हुए होंगे, आज के 50 साल पहले टोटल जंगल थे, खेड़ तो कहीं कहीं थी, 100 में 4 जगह खेड़ होती थी। वो खेड़ ऐसी होती थी, बीज डाल देते थे, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं, कोई दवा नाखने की जरूरत नहीं, अपने आप फसल उग जाती थी। आज जमीन ऐसी हो गई कि बिना ट्रैक्टर के तो हला ही नहीं, ठीक है। 2015 में पिंक बोलवर्म आई, आज तक आप उससे उबर नहीं पाए हो। आगे 10 साल बाद नए जीवात आ जाएंगे। तो खर्चा धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा, जमीन धीरे धीरे हमारी खराब हो रही है, पानी का स्रोत, प्राकृतिक संसाधन हमारे घट रहे हैं। तो इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो हमारा एक मुद्दा बीसीआई प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये हमारी सिर्फ अपने भारत देश की या गुजरात की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। इसके ऊपर सब काम करने में लगे हुए, पूरा विश्व कहीं ना कहीं इससे जुड़ा, क्योंकि औद्योगिकरण अपने देश में भी हो रहा है, तो चीन में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन में भारत तीसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो इसका सम्मेलन होते हैं, जलवायु सम्मेलन, जलवायु, उन्होंने एक टारगेट लिया है कि 2070 तक हम कार्बन का जो उत्सर्जन है ना, जीरो करेंगे। कैसे जीरो करेंगे? ऐसी तकनीक अपना के। तो खेती के अंदर भी हमको ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी कि हम कार्बन का उत्सर्जन धीरे धीरे कम करें। रोजमर्रा के हम जो काम कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है फिर भी लाइट जला दी, आज एक लाइट से काम चल सकती तो भी 4 लाइटें जल रही। क्यों? क्योंकि गांव में तो कोई देखने आता ही नहीं, मीटर लगे हुए नहीं है। मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं बिलियाड़ा की गांव में रहता हूँ, तो पूरी रात वहां पे क्या करते हैं, वो कांटी मार के वो लाइटें जलाते हैं।
मोटर का काम होता है, जितने काम होता है, चक्कियां चल रही है, रात भर चल रही है, कोई देखने वाला नहीं, हीटर चल रहे हैं। अरे जितना उपयोग हो उतना कर लो आप, बाकी फिर तो बंद कर दो। है, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। जरूरत नहीं है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल यहाँ 30 का एवरेज, बुलेट जो आ गई है अभी 15 से 20 का एवरेज देती है, और ये जो दूसरी मोटरसाइकिल है अच्छा 50 का एवरेज देती है, पर शो के कारण से नए लोग क्या कर रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं। जरूरत नहीं है मोटरसाइकिल की, गाड़ी की जरूरत नहीं है, 4 व्हीलर की, फिर भी 4 व्हीलर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नई बहू आ रही है, नई बहू के आते ही वो घर को तोड़ दे रहे हैं। अरे 20 साल में कौन सा घर खराब हो जाता है? पर आप लोग समझ नहीं रहे हो कि घर रहने लायक कि अभी 20 साल और रह सकते तो रहो ना। पर यहाँ पे देखा मैंने 10 साल 12 साल होगा, नई शादी होगी, तुरंत घर को तोड़ देते हैं और नया घर बना रहे हैं साहब। तो ये सब चीजों को हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो संसाधन है प्रकृति ने दिए उनका दोहन हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा, उसका उपभोग कर रहे हैं हम, दोहन कर रहे हैं। उसके आड़ असर भी हमको ही कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको समझने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में बहुत मुख्य मुद्दा होगा। हमारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, पर जीने के लिए जिंदगी नहीं होगी। ठीक है ना? तो उस चीज को हमको समझने की जरूरत है। साथ में हम खेती के साथ में इसमें दूसरे कौन कौन से उद्योग अपन कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, उनकी भी अपन बात इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। तो वो सारी बात हमारी इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी चलती रहेगी। अब ज्यादा लंबे समय नहीं लेते हुए, हमारे साथ में एफ्रो के हमारे बंसल जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे प्रोजेक्ट की आपको जानकारी दें।